Hello guys, what's up? Hope you are doing great. We are back in this video with our next topic, which is our second conditional statement, and it is switch case. So before moving forward with switch case, we need to know when to use switch case. So switch case is mostly used and it is usually used when we have an operation or expression and it can contain several outcomes. So and we have to do some specific operation on those outcomes. So at that time we use switch case. So we will know with an example and syntax. So this is the syntax of our switch case statement, and here we can see we have on the first line we have switch keyword. So in this total switch case statement we are gonna see total 4 keywords of among 32 keywords in C. So those are like this switch, this case, this break, and this default. So these are our 4 keywords among that those 22 keywords. So we are going to see what these keywords do. So first we have switch keyword. So here after this switch keyword we give some expression. So this expression is calculated and its value is compared with the cases. So we can have multiple cases like we spoke about all the outcomes an expression can have. So it checks with all of them. So whichever is true, it executes the operation of those case. So suppose we got the value of this expression as value 2, and then what the compiler will do is it will check the which the case which has the same output, the same value 2. So we can say this case has the same value, that is value 2. So this expression will got the same match and it will then perform the operation which is in case number 2. And this break statement, what this break statement does is, so when the break statement comes, so it breaks out of this switch case statement. So suppose it matches with value 2 and then next line is break. So the compiler will break out of this switch case statement. So and it will not execute all the further cases. And so what keywords we did is switch, then case we saw, then we saw break. So we saw what the break does. It breaks out of this switch case statement, and then we have our default keyword. So what the default keyword does is, if suppose the expression's value doesn't match with any of these cases, so फिर वो क्या करेगा कंपाइलर, वो डिफॉल्ट वाला जो एक्सप्रेशन या फिर जो ऑपरेशन या जो स्टेटमेंट रहेगा वो उसे एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि बाकी किसी भी केस से मैच नहीं हुआ तो वो डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट करेगा. सो दिस इज आवर स्विच केस सिंटैक्स एंड इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. तो इस स्विच के स्टेटमेंट को हम एक एग्जांपल के साथ देखेंगे एंड देन हम एक एग्जांपल को कोड करेंगे. सो सपोज हमने एक इंटीजर डिक्लेयर कर दिया इंट डी सपोज, एंड उसका वैल्यू हमने दे दिया 3, एंड देन हम स्विच कर रहे हैं स्विच, एंड उसके अंदर हम सपोज दे रहे हैं डी. ओके, एंड देन हम यहाँ पे अपने केसेस देंगे. तो केस 1 में क्या होगा कि केस 1 में अगर ये 1 हुआ तो प्रिंट करेगा संडे. ओके, केस 1 में अगर ये 1 हुआ तो ये प्रिंट करेगा संडे और एल्स ब्रेक कर जाएगा. ओके, केस 2 में हम क्या देंगे, सेम मंडे का देंगे हम. ओके, एंड देन ब्रेक करवा देंगे. केस 3 में हम क्या देंगे, केस 3 में हम ट्यूसडे का देंगे, तो प्रिंट करवा देंगे उसे हम कि ट्यूसडे. एंड केस 4, केस 5, केस 6 में हम वैसे ही देंगे, एंड केस 7 हम डिफॉल्ट में डाल देंगे कि सैटरडे का. तो जब ये कंपाइलर चेक करेगा कि डी की वैल्यू क्या है, तो डी की वैल्यू हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी है 3. तो क्या करेगा, फिर वो केसेस चेक करेगा केस में किसकी वैल्यू 3 है. तो हमें पता चलेगा कि जो थर्ड वाला केस है उसकी वैल्यू यहाँ पे 3 है, जो ये वाला वैल्यू है ये 3 है. तो इसलिए वो प्रिंट कर देगा हमारा डे एज ट्यूसडे. सो दिस इज एन वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ स्विच केस. अब हम इसको कोड करके देखेंगे एक एग्जांपल को.
तो आ गए हम अपने VS कोड पे और यहाँ पे हमने switchcase.c की फाइल बना दी है एंड देन हमने अपने मेन फंक्शन में अपना कोड लिखेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसा है कि हमें यूजर से दो नंबर्स इनपुट लेने हैं, इंटीजर्स, एंड देन एक ऑपरेटर भी इनपुट लेना है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करे, लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सो उसके लिए हम स्विच केस यूज करना है हमें, तो हम उसके लिए कोड लिखेंगे। तो पहले हमें क्या करना है कि दो नंबर को डिफाइन कर देते हैं कि ऐसा होगा। देन एक कैरेक्टर डेटा टाइप यूज करेंगे हम ऑपरेटर के लिए एंड उसका नाम भी वही देते हैं, ऑपरेटर। एंड देन हम क्या करेंगे कि हमें इनपुट लेना है यूजर से, तो हम पहले प्रिंट एफ में डालते हैं कि एंटर एन ऑपरेटर, एंटर एन ऑपरेटर एंड इट कुड बी लाइक, हम चार ऑपरेटर का पहले देखते हैं, प्लस माइनस देन अपना मल्टीप्लिकेशन एंड देन डिवीजन। सो ये हम इनपुट लेंगे यूजर से, देन इसके बाद हम देंगे scanf जिससे हमें इनपुट लेना है। तो इसमें हम क्या देंगे, %c एंड हम इनपुट में लेंगे ऑपरेटर में, राइट। तो हमें उसके लिए एड्रेस ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा क्योंकि ऑपरेटर में हमें स्टोर करना है वो, तो उसका एड्रेस देना पड़ेगा हमें। एंड देन हम और एक प्रिंटफ लेंगे, उसमें हम क्या लेंगे, दो नंबर्स अपने। तो एंटर द टू नंबर्स। सो यहाँ पे ये भी हो गया एंड देन हम स्कैनफ से वो भी इनपुट लेंगे। सो हम क्या करेंगे कि %d और एक बार और, क्योंकि दो नंबर लेने हैं हमें, तो हमें यहाँ पे फिर क्या देना है, x, y। सो ये हमारा हो गया, सेमीकोलन भूल गए थे हम, तो ये हमारा हो गया इनपुट लेना यूजर से। अब हम स्विच केस यूज करेंगे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो स्विच हो गया यहाँ पे एंड देन हम इसके अंदर ऑपरेटर डाल देंगे अपना, कि अगर ऑपरेटर की जो भी वैल्यू होगी, हम जो इनपुट लेंगे यूजर से, वो चेक करेगा हम केसेस में। तो हम केसेस देंगे अब केस। तो केस में क्या हम होगा हमारा, पहला एडिशन वाला होगा एंड देन उसमें हम क्या प्रिंट करेंगे कि the addition of the two numbers is and then हम क्या प्रिंट करेंगे, %d। यहाँ पे हमें ये देना है, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा x प्लस y, राइट, क्योंकि हम एडिशन का हमें आउटपुट दे रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया केस 1 एंड देन हम क्या कर जाएंगे, ब्रेक, राइट। एंड देन हमें सिमिलरली ऐसे और 4 केसेस लिखने हैं, तो हम इसे कॉपी कर लेंगे, इसके स्टेटमेंट को कॉपी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अननेसेसरीली हार्डवर्क क्यों करना है, ये हो सकता है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन वाला करना है एंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू नंबर इज, यहाँ पे परफॉर्म भी हम माइनस डाल देंगे। देन यहाँ पे हमारा क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आएगा एंड देन हम यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर ही डालेंगे एंड यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन डालेंगे एंड देन हम यहाँ पे अपना डिवाइड वाला ऑपरेटर डालेंगे और यहाँ पे डिवीजन ऑफ द टू नंबर्स, और यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे हम उसे। सो ये हमारे 4 केसेस हो गए एंड देन हम डिफॉल्ट में क्या डालेंगे कि अगर सपोज मैच नहीं हुआ किसी से, सो डिफॉल्ट में हम क्या प्रिंट करेंगे कि एंटर वैलिड ऑपरेटर, राइट। अगर कोई वैलिड ऑपरेटर नहीं डाला, इसीलिए वो डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट करेंगे एंड दिस इज आवर कोड। अगर कुछ मिस्टेक है यहाँ पे तो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं यहाँ पे कमेंट्स में।
एंड देन हम इसे रन करेंगे। तो एरर क्या आया है? बिफोर दिस वी हैव दिस। ये एक्स्ट्रा एक हो गया था। सो हम अपने कोड को वापस रन करके ट्राई करेंगे। सो एज वी कैन सी हमें आउटपुट आया कि एंटर एन ऑपरेटर। तो एक ऑपरेटर एंटर करेंगे हम, डिवीजन ऑपरेटर। एंड देन नेक्स्ट लाइन में पूछ रहा है कि एंटर द टू नंबर्स। सो हम 9 एंड 3, सॉरी 9 and 3 एंटर करेंगे। सो एज वी कैन सी आउटपुट आ गया है, द डिवीजन ऑफ द टू नंबर इज 3। सो दिस इज अ सिंपल एग्जांपल ऑफ स्विच केस। सो इस वीडियो में हमने स्विच केस देखा, उसके एग्जांपल्स देखे, उसको कोड करके देखा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगले वीडियोस में हम देखेंगे हमारे इटरेटर स्टेटमेंट्स, हमारे जो लूप्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।